चला क्विकली. बाय द वे, आणि हे प्रोग्राम कोणी ट्राय केलं फॉर लूप वगैरे? एनीवन? सर कालचा जो प्रोग्राम होता, सपोज जानेवारी मध्ये जर 4 संख्या आहेत आणि फेब्रुवारी मध्ये सपोज 6 आहे, 2 एक्स्ट्रा झाले, ग्राफ मध्ये तुम्हाला काय पाहिजे? जानेवारी मध्ये 4 दिसले पाहिजे, फेब्रुवारी मध्ये 2. Okay. Anyways, no response as usual. So, okay, काल for loop दिलं होतं. Has anyone tried? For loop work होतं सगळ्यांचं? Did you understand for loop काय असतं? So आज आपण बघणार आहे which is next version of loop, जिथं conditional आपल्याला use करता येतं. We can use a condition आणि त्या condition वरती आपल्याला loop continue करायचं की नाही, that we can decide. Okay, this is called conditional loops. याला conditional loops असे म्हणतात, किंवा conditional control flow statements. Control flow म्हणजे किती वेळा रन करायचंय, काय करायचं, I can control the flow. तर तो इसके जो जो अलग अलग टाइप है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के, these are nothing but if, elif and else. elif is nothing but else comma if का कॉम्बिनेशन है elif, elif है ना. सेकेंड वर्ड ये जो आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट अ elif, मतलब else और if का कॉम्बिनेशन है वो, that's why else if. So let's understand what is the meaning of if, what is the meaning of else, and what is the meaning of else if. Okay, by the advantages जैसे हमने कल डिस्कस किए थे, this is to control कितनी बार हमें repetition करना है, or to avoid the repetition of code, or if you want to execute a certain line multiple times, that is achieved using control flow statements. Okay. So you can control, and so conditional जो control statements है उसके advantage obviously to check the condition. If condition is satisfied, then only you can allow that statement to run or happen, right? Clear? म्हणजे suppose example ये है, मान लीजिए आपको एक number of people और उनके age दिया गया है, तो उस age जो column है उसमें से आपको filter out करना है कि people who can vote. अभी वोटिंग करने के लिए 18+ एज चाहिए, सो यू कैन यूज अ कंडीशन जहां पे भी एज ग्रेटर देन 18 हो, दोज पीपल कैन वोट. सो यू कैन फिल्टर आउट डायरेक्टली, और फिर उसके बाद नीचे मैसेज लिख सकते हो, द पर्सन नेम कैन वोट, द पर्सन दिस कैन वोट, राइट? So such applications where you need to check a condition and then execute a statement, that time you can use a control flow statement as conditional based control statement. So pictorial कैसे दिखता है ये? So suppose there is line of code here, then next, okay, next something I have to print here. Suppose in this case print, यहाँ पे can vote print करना है, right? So what it will be, here I will check the condition. Here I will check the condition. Condition क्या है? Age. Just a second. Okay, screen. Okay, so this is nothing but a pictorial representation of conditional statements. So in this you can check the condition, right? Age greater than 18. Condition कैसे check करेंगे? Comparison operators, right? और logical operators, जो भी हमने operators सीखे थे, that you can use. म्हणजे जे आपण operators वगैरे बघितलं होतं, तुम्ही ते use करू शकता, right?
ओके ठीक आहे. So those operators you can use. नहीं चलेगा. अरे वो ऊपर नीचे हो रहा है ना, so not able to. Right, so condition and then body में क्या रहेगा, maybe what message can vote message में लिख सकते हो आप. This is nothing but a condition. Okay, but what if the age is less than 18? यहाँ पे true age is greater than 18 के बाद ही true होता है, right? So what if age is less than 18? So what happens? It will go to else because my condition is false. So it will have a false statement as well here. आता false मध्ये पण तुम्ही अजून condition test करू शकता. Whether he is less than 13 or less than 10. जर तुम्हाला काय condition असेल तर that you can put a condition here. परत त्या condition चे दोन statement true and false. If that statement is true, you can print something here. If that statement is also false, is a false message. Suppose in this case, cannot vote, right? This is nothing but a flow statement. म्हणजे control flow असा होतो. एक condition असते whether that is जर ते satisfy झालं तर something, if that is not satisfied then something else. elif condition आपण किती वेळा लिहितो? So you can write as many times as elif conditions. म्हणजे elif condition किती वेळा पण ऍड करू शकता. स्टार्ट इफ नी होते, जर इफ सॅटिस्फाय नाही झालं तर एल्स. ओके, बट इफ यू वॉन्ट टू ऍड सम मोर कंडिशन्स, ओके, म्हणजे इफ नंतर अजून एक कंडिशन. इसका रियल लाइफ एग्जांपल देना, इफ आई वांट टू हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज ग्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है अपना, इफ यू स्कोर मोर देन 85% तो यू आर distinction, right? So more than 60% A class, more than 50 B, more than 35 something you can see pass, right? And less than 35 is fail. So ये condition सारे आपको बनाना है, तो what you can do? So हाँ, you can do as many as condition. Now we have a 4 condition. First I need to check whether he is distinction or not. तर फर्स्ट केस मध्ये मी काय चेक करणार, उसको 85 से ऊपर है कि नहीं चेक करूंगा. इफ 85 के ऊपर है, ओके, सपोज हियर आई चेक फॉर 85%, ओके, 85 है तो डायरेक्टली वो डिस्टिंक्शन हो गया, उसके नीचे कुछ चेक नहीं करना है, राइट? फेल है, पास है, आई डोंट हैव टू चेक. 85 means he is pass only and in the pass he is distinction, right? So let's check, let's put it here 85. Or let me take a notepad or something. Okay, इथे maybe I can write, इथे मी चेक करतो मार्क्स ग्रेटर दॅन 85. ओके, जर हे ट्रू असेल तर काय प्रिंट होईल मला सांगा. इथे प्रिंट डिस्टिंक्शन, राईट? डिस्टिंक्शन, ओके. आणि हे जर फेल असेल तर व्हॉट विल हॅपन, इट विल गो हिअर, या लूप मध्ये जाईल इकडे, इथून मग खाली आलो समजा इकडे. ओके, इफ हे कधी येईल, दिस इज ट्रू असेल तर, आणि जर फॉल्स असेल तर लेट मी राईट हिअर फॉल्स. फॉल्स असेल तर मग तुम्ही काय चेक करणार, हा डिस्टिंक्शन मध्ये नाही आहे, लेट्स चेक वेदर 70च्या वर पडलेत का, ए क्लास आहे का, हे चेक करू शकता. मग इथे सॉरी, ओके नाही ते नाही होत काहीच. ओके, सो लेट्स टेक द वन मोर एक्झाम्पल हिअर, मार्क्स ग्रेटर दॅन 70. ओके, तर इथं परत दोन स्टेटमेंट येतील, ट्रू अँड फॉल्स. इथं काय असेल, फॉल्स असेल, राईट? आणि खाली काय असेल, ट्रू असेल इथे. ओके, आणि ट्रू असेल तर तुम्ही काय प्रिंट करणार, इथे प्रिंट ए क्लास, राईट? ए ग्रेड, ए क्लास. आणि फॉल्स असेल तर परत तुम्हाला चेक करायला लागेल, इथे येऊन परत तुम्ही चेक कराल, परत इथे मार्क्स चेक करा, मग
राईट. आता मार्क्स किती ग्रेटर दॅन आहेत का 60 और लेट्स टेक एग्जांपल 35 डायरेक्टली 35 मार्क्स 35 के ऊपर है क्या मैं चेक करूंगा. हियर इफ अगेन मार्क्स 35 के ऊपर है तो व्हाट विल बी द माय क्लास. प्रिंट क्लास बी. चलो बी क्लास है ना. और 35 के नीचे है यहाँ पे क्या होगा. दिस विल बी अ फेल राइट. यहाँ पे फेल हो जाएगा वो राइट. तो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ if elif and else कंडीशन में फेल्स whatever आखिरी में मतलब if he is not in a B class वो डेफिनेटली फेल है फिर. you don't even have to check whether उसको कितने मार्क पड़े हैं मतलब whatever mark he has scored. okay so flow suppose if you have only two condition whether driving license चाहिए कि नहीं चाहिए. take example if तो सपोज सम पर्सन हैज अप्लाइड फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग टेस्ट जो भी टेस्ट रहेगा टेस्ट पास है देन ही इज एलिजिबल और अप्रूव्ड. एल्स फेल. यू डोंट इवन हैव टू चेक वेदर ही इज फेल कितने मार्क किससे फेल हो गया और पास है तो कितने मार्क्स मिले. not required right. if there is only two condition you can use if and else. if you have multiple conditions you can use if else if whatever condition last condition will be the else. like if he is not satisfying any of the earlier condition then he has to go into else block. okay clear. so this is nothing but else. so let's print something programmatically करके देखते हैं and then maybe we can conclude. okay these are nothing but a branching पण याला म्हणतात because it is creating multiple branch. तुमचा जो डेटा आहे तो so data can be segregated into different buckets. distinction वाले distinction मध्ये जातील A वाले A B and fail. so these are nothing but a branching as well. few programming languages call them a branching. okay so याचं how it is syntax if okay if start with if and then condition and then colon के बाद condition 1 condition 2 यहाँ पे you can put a indent. clear. by the way I'm not let's see x is equal to 10 or my number is equal to 10 and I will check whether my number is greater than 10 or not. if greater than 10 it has to मतलब means it condition is satisfied then it will print my if block. this is nothing but a block. why block क्योंकि यहाँ सेमीकोलन दिख रहा है और यहाँ पे इंडेंट भी दिख रहा है आपको है ना. yes. जैसे फॉर लूप में भी सेमीकोलन होता था एंड सेमीकोलन के नीचे इंडेंट रहता था सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ फॉर ब्लॉक. फंक्शन में फंक्शन बॉडी फॉर में फॉर लूप फॉर बॉडी और फॉर लूप बॉडी. सो यहाँ पे भी इफ you can say it if block you can say if block mostly call it or body पण तुम्ही म्हणू शकता. तर याचा इंटरप्रिटेशन असं होईल suppose this is a if which is keyword or reserved word then this becomes a condition. if my condition is true then my body should run. मतलब this if का बॉडी शुड एग्जीक्यूट और ये कंडीशन फॉल्स आ गया तो व्हाट विल हैपन इफ कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन इज फॉल्स आइडियली एल्स ब्लॉक रन होना चाहिए क्योंकि इफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बट डू आई हैव एल्स ब्लॉक हियर नो. तो वो क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा कोड वहीं पे खत्म हो जाएगा. ओके म्हणजे कोड तिथेच संपून जाईल. if else नाहीतर if else you can use different variations but the concept you need to understand is the condition has to be satisfied to run that block. elif जरी वापरलं elif च्या पुढे कंडिशन तुम्ही यूज कराल and elif block has to run म्हणजे ते कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली तर elif चा ब्लॉक रन होईल.
नसेल तर it will go out, it will come to else. Okay. और ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है नहीं होता है, what will be the output of this? Not satisfied. Okay, so output क्या आएगा इसका? नंबर greater than 10? कुछ भी नहीं आएगा. Okay. So in this case, if I run, let's see what is the output. कुछ भी नहीं आया output. Means run हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? Can you see the number? यहाँ पे execute हो गया. If I click something or change something, put number 1, यहाँ पे star आ रहा है, right? And if I put number 1 again, let me run. Observe here. ये देखिए 2 आ गया. So means cell has been executed, but इसका output नहीं आ रहा है because this condition is not satisfied. इसका output क्या आ रहा है? इस condition का output false आ रहा है, right? मतलब copy, let me show you the condition. यहाँ पे run करता हूँ. What is the output? False, right? तो इसीलिए वो नीचे नहीं जा रहा है. What if I make it a, if my number is समझो 5 है और let's make it 15. अभी बताइए ये कंडीशन क्या हुआ? 15 greater than 10? True होगा. Then let us see कि क्या आता है इसका आउटपुट. Number 1 is greater than 10. ये देखिए I am inside if statement and number 1 is greater than 10. और नीचे देखिए printing some pattern star 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 10 बार. हमने ये सीखा है, right? String को if you multiply with the number it will repeat itself, है ना? अभी सिर्फ ये 3 लाइन रन हो रहे हैं. क्लियर? Why? Because इसका आउटपुट देखिए अभी. कॉपी, चेक आउटपुट हियर. ट्रू है, राइट? इसलिए ये रन हो रहा है. सो व्हाट इफ आई मेंशन व्हाट विल बी द आउटपुट? अभी इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए? Will it work or not? Yes, it will work. By the way, वर्क होईल की नाही होईल सांगा. मी डायरेक्टली इथं ट्रू दिलं. हा होईल. ऑनलाइन राहुल. हा नाही थर्ड लाइन x not defined. राहुल ओके ठीक है. सो इफ प्रिंट, बाय द वे लॉजिकली अंडरस्टँड ट्रू लिहिलं इज नथिंग बट अ कम्प्युटेशन होऊन ना. जर मी कंडिशन लिहिलं असतं, ह्या कंडिशनचं आउटपुट काय येतं? ट्रू अँड फॉल्स. So definitely if I write a true it will execute, if I write a false it will not. Don't forget basics. Comparison operator का output always comes in a boolean. So if I write a boolean there, directly it will work. Let us see whether it works or not. Right? And comparison operator always provides a boolean output. So if I remove this condition, write a boolean there directly, it will interpret as a boolean only, right? And it will execute. Let's take one more example where maybe if statement again. If %2 is equal to, ये क्या कंडीशन है? What is the ये ampersand क्या डिफाइन करता है? रिमाइंडर. याद है क्या? कितना if you divide something what is the बाकी? राहुल क्लियर? अभी बाकी को हिंदी में क्या बाकी बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ठीक है समझ लो आप, है ना? सर दैट्स अ रिमाइंडर लॉजिक. यहाँ पे if the given number is even नहीं तो odd, can I write one more method? बाकी हिंदी मध्ये माहित नाही, मराठी ओके मराठी मध्ये बाकीच म्हणतात. ओके. So you can
execute. Suppose a odd hai. If I make it even, it will run. Even is even. If it is odd number 15, ये condition false हो जाएगा, right? क्योंकि उसका रिमाइंडर इक्वल टू डबल इक्वल टू 0 में नहीं आएगा ना, right? This program you already written. So this is nothing but a not equal to. Has anyone tried? याद है ना, not equal to, exclamation mark and equal to. This is not equal to, है ना? Let's check what is else statement के साथ. So this is a condition. If और ये condition, then colon और ये indent, all things are same. और एक condition satisfied हो गया तो statement 1, statement 2. If condition is false, then I have a else block. तो else block भी same तरीके से लिखा जाता है, colon indent automatically आएगा और statement 3 and 4 will run. So let us see. By the way, कोडिंग देख रहे हैं क्या? जहां पे भी कोलन दोगे उसके बाद इंडेंट आएगा, और ऑल द स्पेशल कंडीशनल स्टेटमेंट सच एज फॉर हो गया, इफ हो गया, इवन व्हाइल हम देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हैज अ ब्लॉक्स, और वो कोलन के साथ ही ब्लॉक ऐड हो जाता है ना? सो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है. इसलिए इफ यू ट्राई टू राइट इट ऑन नोटपैड आपको ये सब समझ में आएगा. इफ यू ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन जुपिटर नोटबुक इट विल ऑटो इंडेंट. And in interview most of the times if they ask you to write it in a notepad then you have to be careful what you are typing. आपको manually indent लिखना देना पड़ेगा वहां पे, है ना? Or if you make mistake then obviously, as Python is an indentation or indented language, they will ask you something related with the indent then, है ना? Clear? You can expect the question. आपने कहीं indent का गलत, if you make a mistake and then he goes to asking you basic question, then you need to understand why he is asking certain question. So let's take the same example. This is my number 2, or number 2 is equal to 5, or number 2 is equal to 5 if x की जगह पे let's try to put a number 2 here. अभी बताइए ये कंडीशन का आंसर क्या होगा? फॉल्स. फॉल्स, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, राइट? देन वेयर इट विल गो? इट विल डायरेक्टली जंप टू एल्स ब्लॉक, राइट? और एल्स ब्लॉक में जो है वो प्रिंट होगा, ये सब कुछ प्रिंट होगा, राइट? इफ ब्लॉक वो स्किप करेगा, ये इफ का ब्लॉक है, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट. क्लियर? व्हाई? बिकॉज दिस इज अ फॉल्स. व्हाट इफ, यहाँ पे इसका आंसर बोले इफ आई मेक इट 15, अभी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, राइट? दिस आंसर मतलब इज 15, इसका मतलब क्या है? 15 ग्रेटर देन 10, इसका आंसर बताइए क्या होगा? ट्रू, राइट? 15 ग्रेटर से 10 से ग्रेटर है. देन इट विल एग्जीक्यूट ओनली इफ ब्लॉक, मतलब इतना ब्लॉक रन होगा, ये रन होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? क्योंकि दिस इज इफ इन प्रोग्राम, इफ आई वांट टू शो इट, ये ऐसे वर्क होगा. एंड ये फॉल्स, और यहाँ पे मान लीजिए दिस विल बी अ ट्रू, राइट? और इसके अंदर कंडीशन रहेगा ये, यहाँ पे कुछ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10, राइट? और यहाँ पे वो आएंगे ब्लॉक्स दोनों, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ आएगा और ये स्टेटमेंट यहाँ आएगा. सो इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, ये इधर से इतना प्रिंट करेगा और एंड हो जाएगा. यहाँ पे फॉल्स है तो इतना प्रिंट करेगा और ये एंड हो जाएगा, और ऐसे ही वर्क होता है, राइट? क्लियर? ऑनलाइन क्लियर रिप्रेजेंटेशन? So let's see, let's go with the first true case.
I am inside, किसके inside हो? I am inside if block, right? Let's change the variable here. ये देखिए, number 2 is 15, so this condition is true. That's why I am inside this, which is printed here. Clear? And this time else print नहीं हो रहा है, else print नहीं हो रहा है, else मध्ये नहीं है. Okay, so let's change the condition, make it 5. In this case, tell me if I make it 5, is 5 greater than 10? False. अभी ये false है तो I should print here only. This will not get print. So let's check. देखिए, I am in the else block. 5 is smaller than 10. Okay, clear? Yes, sir. So next, one more variation of this can be else के जगह पे कंडीशन लिखिए. मतलब ऐसा नहीं हो कि हर जगह पे आपके दो ही कंडीशन, मतलब एक कंडीशन से ही डिसाइड हो रहा है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू. ऐसा नहीं हो सकता ना हर बार. ट्रू है तो उसमें और एक दो तीन कंडीशन होंगे एंड देन फॉल्स. सो उसके लिए वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफ. ये देखिए, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन में चेक कर सकता हूँ. पहले तो चेक कीजिए ग्रेटर देन 10 है क्या, फिर चेक कीजिए ग्रेटर देन 5 है क्या, और ये दोनों नहीं है, then I can print this. Okay, so let us take my x is a variable which is 3. मैं पहले चेक करूंगा. अभी बताइए यहाँ पे, is 3 greater than 10? इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, सॉरी, फॉल्स, राइट. अभी नीचे का कंडीशन बताइए. फॉल्स. If I go here, this will be 3 greater than 5. इसका आंसर क्या आएगा? False, right? So false है, इसलिए this we are not running this block. ये भी block run नहीं होगा. If block, if elif का block, then automatically वो ये run करेगा, है ना? Because there is no condition. False, false. If I make it 8, let's make it 8. Okay. Now बताइए, if 8 is greater than 10, true? False, right? अभी next condition बताइए. 8 is greater than 5, ये क्या आएगा? True, right? So it will print this statement. So let us see. 8 is greater than 5 but not greater than 10. ये line print हो रहा है मेरा, देख सकते हो क्या यहाँ पे? This line is getting print, right? Or one thing to observe, if any condition satisfies, वो else print नहीं करता. ऊपर वाले कोई भी condition satisfy नहीं है तो ही else print होता है. Okay? What if both conditions are satisfied? Let's make it 15. So बताइए यहाँ पे is 15 greater than 10? True, right? तो ये क्या करेगा? अभी ये ब्लॉक प्रिंट करेगा. Then he, अभी यहाँ पे बताइए, is 15 greater than 5? ये भी true है, so it will print this one. Clear, right? Let us see. What just happened? So the how loop works, understand. It will check only one true condition. म्हणजे if इसको एक बार true मिला तो loop खत्म. It will not go down. वो ऐसे multiple condition नहीं check करेगा. It has to get only one true.
बट फॉल्स है तो इट विल गो एंड चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस. सो दिस इज द बेसिक until it finds true or it finds else. कोई भी कंडीशन उसको ट्रू नहीं मिल रहा है तो else प्रिंट करके निकल जाएगा. इफ इट फाइंड्स एनी कंडीशन ट्रू तो वो उतना ही प्रिंट करेगा एंड इट विल क्लोज. व्हाई? ये ऐसे क्यों होता है? लेट्स कम्स एज अ इंडेंटेशन. क्लियर? देखिए व्हेन अभी इंडेंटेशन कैसे आ रहा है, दिस इज द वन लाइन, ओके, और इसके नीचे ये दूसरा लाइन है, यहाँ पे दिस इज माय इंडेंट. सो वंस माय प्रोग्रामिंग इनसाइड इंडेंट, एक बार इंडेंट के अंदर गया तो इट कैन नॉट कम आउटसाइड. That's why either it has to finish there or it has to close. Okay, that's why once it got true condition तो वो एक indent level अंदर गया. This is nothing but you can understand level 1 level 2. If it goes to level 2 it will execute the code. It will try to go down only. level 2 में ही देखेगा वो, कुछ है तो print करेगा, नहीं तो it will end. It will not come outside. Okay, that's why the indents. It will work in each and every case. So you need to understand कि आपको वो level 2 में उसको जाने नहीं देना है. If you want to build some condition, multiple conditions check करना है तो make it serially. पहले ऐसे condition डालो जो कि higher है. मान लीजिए in our case I checked distinction first. What if मान लीजिए मैं directly A class check करता हूँ, but A class के आगे भी कुछ है ना distinction वगैरह, वो कैसे check करूंगा? I cannot check if I use A class or if I start with B class. B class check करो B है कि नहीं, फिर check करो A है कि नहीं, फिर check करो distinction. It is a it will not, मतलब बहुत complicated हो जाएगा program. logically better बन रहा है. हाँ, so you need to understand higher सबसे जो टॉप ऑर्डर में कंडीशन लगाओगे वहां से स्टार्ट करना है और नीचे नीचे आना है ना. व्हाई? बिकॉज एक बार उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते. तो उस केस में क्या कर सकते हो, अंदर ही और एक कंडीशन बनाते जाओ. मतलब यहाँ पे दिस इज माय इफ ब्लॉक, राइट? तो इफ के अंदर और लिखो ना, इफ x इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो और एक ब्लॉक बनाओ, इसके अंदर प्रिंट करो, राइट? प्रिंट इनसाइड if if and if block, but this becomes too complicated. Okay, so try to minimize your code, नहीं तो ये ऐसे बनाना पड़ेगा. तो एक फर्स्ट स्टेप में वो चेक करेगा, ट्रू है तो नीचे जाएगा, वापस अगेन ट्रू चेक करेगा, वापस नीचे जाएगा, ऐसे वो नीचे जाते जाते it will try to go here and execute the code, वो वापस ऊपर नहीं आएगा ऐसे. So if you want to get, मतलब आपको जो आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, और इसको कर्सर बोलते हैं जनरली, द कर्सर जो मूव हो रहा है, मतलब पहले ये कोड रन करेगा, फिर ये रन करेगा और इसको बाहर निकालना है, तो यू हैव अ समथिंग कॉल्ड ब्रेक. ओके, आपको ब्रेक नाम का एक कीवर्ड यूज करना होता है, ब्रेक. बस इतना लिख के छोड़ दो तो वो क्या करेगा, वहां पे ब्रेक लगाएगा, बाहर आएगा, वहां पे भी ब्रेक लगाओ, बाहर आएगा. Clear how the loop works? Try to avoid the break statement because you cannot keep the track. कौन सा इंडेंट से कब बाहर आ रहा है वो पता नहीं चलेगा आप, है ना? So advise to use a logical if, मतलब proper logic define करो and then you use, or else आपको सब कुछ पता है इसलिए you एक के अंदर एक कंडीशन भी लगा सकते हो और ब्रेक भी लगा सकते हो, बट इट मे नॉट वर्क एवरी टाइम. कुछ लॉजिकल वैल्यूज आएंगे एंड इट विल चेंज एवरीथिंग, है ना? सो कैन यू गाइज मेक एनी कोड? इसका एक प्रोग्राम बनाइए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, टेक एन एग्जांपल ऑफ, पहले तो चेक कीजिए कि वेदर इट्स वोटिंग एज. हाँ, वोटिंग एज भी ले सकते हो, और वेदर, ठीक है, यू कैन मेक ए वोटिंग एज 18 है या 18 नहीं है,
and then you can check whether he is even Indian or not or something, or whether he is adult or not. Adult can be classified after 14. Okay. तर इथं मल्टिपल कंडिशंस आपको लगाना है, मतलब पहले चेक कीजिए वेदर वो 18 प्लस है या नहीं है. और बाय द वे adult who all, what is your age by the way, range? Everyone is 20 22 plus. 25. Okay. And anyone knows what is the drinking age limit in India? 21. Okay. 21. And आप लोग फिर let's Google it. It's not that low. 25. No sir, it's 21. Legal age to drink in India. Okay. 21. Okay, good. Right. Okay, so आप अभी you can make a code whether he is 21 से नीचे है या नहीं, then 18 के नीचे है या नहीं. Okay. 18 cigarette है. Okay, I don't smoke, so I don't know what is the or maybe okay, it becomes too toxic example. Let's take good example. Okay. No, sir. What if you're working for actually a good thing, good purpose? Okay. 99 इसलिए बना लिया. Okay. Okay. Take senior citizen है या नहीं है? That we this is a good example. Okay. Sir, we can do that. Okay. If the age is above 21, then you are from millennium generation. If you are from 14 generation, you are Gen Z. Okay. ठीक है, चलो चलो quickly code लिखो. चलो. By the way, take an example whether you are senior citizen or not. ये check करना है. Okay. Senior citizen है कैसे पता चलता है? Whether he is greater than 65. Okay. And less than 65 है तो he is not senior citizen. And greater than 18 है तो he can work or he cannot work, or he can vote or he cannot vote. So multiple conditions you need to perform. So let's take this example here. Age is 78. So if what I'm doing here, I'm checking first less than 18 है कि नहीं, whether he is less than 18 or not. Age is less than 18 है तो the person is less than 18 years old. Okay. मान लीजिए तो application ऐसा है कि you want to hire a person for your organization. So working age can be 18 to 65. So this is working age or allowed working age in India, right? So you need to understand, आपको एक application receive हुआ है, so you need to understand whether he can work with us or not. So this is the condition you need to generate. So what you will check, पहले तो वो child labor है या नहीं वो check कीजिए. You should not hire anybody who is 18 years old. It is legally not allowed. Mostly I guess 16 is the legal age, but for our example you can take it as 18 as a legal age to work. Okay. So first condition you need to check whether he child labor है या नहीं है. Okay. If 18 से नीचे है तो you can print the person is less than 18 years old, is not eligible to work with us. Okay. फिर उसके बाद चेक कीजिए whether age is 18 से greater है या नहीं है. Okay. If age greater than 18 है then he can work with us, right? But 65 के नीचे भी चाहिए ना. What if he is 78 years old? 18 years के ज्यादा ही है. So this is the condition. That's why we have used a AND operator where I am checking whether age is 18 से ज्यादा and 65 से कम. So I have used AND operator. यहाँ पे else if है क्योंकि मैं condition check कर रहा हूँ और इस पूरे condition का output है तो ही the person can work with us. Else person is senior citizen. क्योंकि child labor तो हमने check किया है, 18 plus 65 भी हमने check किया है यहाँ पे, तो बचा कौन? Senior citizen.
first logic also start from the higher. Start from the higher. Check whether he is senior citizen or not. If he is senior citizen, then next logic, either he is greater than 18. greater than 18 or not, and else may he is a child labor, right? So you can either way you can do the code. Clear sabko? So these are the multiple variations. So you have taken a multiple variation of a code, है ना? By the way, logical and है, and मगस and true or false, electronics T T T F F T, so that is the application here. By the way, when to use and? Whenever we need both conditions true, then we can use and if when you want to put a compulsion, right? और कब यूज करना है? ऑप्शनल म्हणजे ऑप्शनल कंडिशन असतील दोन्ही तर मला और यूज करायचं. इफ इट इज अ कंपल्शन देन आय हॅव टू यूज अ अँड, राईट? दॅट्स व्हाय इट्स सिंपल. नाहीतर ते इफ यू आर कम्फर्टेबल विथ द टेबल टी 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 एफ एफ टी, it's your call, but logically that's how it is used: compulsion and optional. Chalo. So one of the real, you can check, this is write a program to calculate electricity bill, right? ये आप कोड लिख सकते हो. This is, you can take it as a homework. This is nothing but application हमारा है, मतलब whatever we learned. इससे क्या करना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है उसके बेसिस पे बिल बनता है. ओके क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं है बट दिल्ली में वगैरह फर्स्ट 500 यूनिट्स आर फ्री, राइट? दिल्ली, कर्नाटक एंड अदर स्टेट्स. तो आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितना किया है. इफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज लेस देन 500, उसका बिल 0 कर सकते हो, और लेस देन 200 यूनिट्स ऐसा कुछ है, आप यू कैन चेक द प्रैक्टिकल. लेस देन 200 यूनिट है तो बिल उनको 0 देना है. 200 to 500 है तो 5 रुपए लगता है. 500 के ऊपर यूनिट है तो इट टेक्स 10 रुपीज, प्लस 700 और 1000 के ऊपर 15. जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते हो बिल भी ज्यादा बढ़ता है पर यूनिट चार्ज. दिस इज हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ आल्सो. Out of context here a question, but so the first 500 units are free if and 500 च्या वरती let us assume I use 600. मग ते बिलिंग 600 चं होतं की फक्त 600 कंप्लीट 600 पे बिल होगा. मग ते 500 no, as that calculation is works in only income tax, but in real world if you use 501 you have to pay complete bill. ओके ऐसा नहीं कि पहले 500 फ्री थे सिर्फ 1 यूनिट का बिल पे करो, ऐसा नहीं होता. ओके ठीक है. that's unit are example is the, this is just an example. रियल वर्ल्ड आपको ट्राई करना है. रियल वर्ल्ड में भी सही प्रोग्राम होगा. यू कैन टेक ऑल द रियल वैल्यूज. इलेक्ट्रिसिटी बिल इन दिल्ली डालिए देन यू विल गेट अ 8 रुपये यूनिट आहे. हाँ 7.5-8 चेंजेस सिटी मध्ये जास्त आहे. इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन कैलकुलेटर फॉर दिल्ली डालिए, you will get exact code वगैरह, you will get it. हम दिल्ली exact details जो भी दिल्ली देखिए कंजम्पशन कितना है यूनिट की. so this is the calculator up to 2 watt और power range 0 to 200 3 रुपये, 201 ते 400 4.5
408 टू इतना, दिस इज द रेट। उसके ऊपर फिक्स चार्जेस पर किलोवाट आपको देना ही है, मतलब दिस इज पर यूनिट, देन यू कैन पे 20 रुपीज पर चार्ज वगैरह। ओके, मतलब ये सबका कंबाइन कैलकुलेशन होगा। तो दीज आर नथिंग बट इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले तो आपको ये चेक करना है, राइट? उसके बाद इसका लॉजिक लगाना है, राइट? उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है, इस जस्ट एडिशन, बट आपको एक दो कंडीशन तो चेक करना है और उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सो यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये एग्जांपल है, इसके ऊपर वी हैव रिटन अ कोड, है ना? ये देखिए, बाय द वे सबको लिखना है कल का एग्जाम, दिस यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क। And one thing to observe what I have done here. मी इथं काय केलंय? Okay, this is the one, and I want you to focus on the function. I can use this logic across the application. फक्त माझ्याच कोड मध्ये नाही, right? So I have used a function, और function में मैं क्या पास कर रहा हूँ? N is number of, मतलब मैंने कितना कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। Okay, that's why I am writing this code. Electricity bill 780 units, right? What is the next statement if I want user to enter? इधर still I am editing the code, मतलब by the way ये क्या हो गया मेरा function definition, this is nothing but a function definition, right? और function call कहाँ पे है? ये function call है, right? और ये function call में भी this value is fixed और static, this is प्रोग्रामेटिकली आप जो भी वैल्यू प्रोग्राम में लिखते हो ना, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक वैल्यूज। मतलब यहाँ पे मैं एक्चुअल कोड एडिट कर रहा हूँ, राइट? मान लीजिए 800, सो दिस बिकम्स माय स्टैटिक कोड, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक वैल्यू। इफ आई वांट टू मेक इट अ डायनामिक, देन वो यूजर से लेना चाहिए। हाँ, डायनामिक मतलब यूजर से लेना है। तो व्हाट शुड आई राइट हियर देन? टेल मी। सर यू कैन टेक अ वेरिएबल नेम। ओके, टेक अ वेरिएबल, चलो बताइए। यूनिट्स, 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 यूनिट्स इज इक्वल टू हाँ, इंट ब्रैकेट, ओके, इनपुट, इनपुट ब्रैकेट, ब्रैकेट, enter the units, enter the units, and in electricity bill units consumed, right? Then space छोड़ा, okay, then electricity bill instead of 800 units, right? Okay, so let's run this code. Now you can enter the unit, so आपको bill हो गया। This is called a dynamic programming. Okay, you are taking input from user, this is how you should ideally हे असं कोड लिहायचं असतं, it should be dynamic end to end, जिथं फंक्शन पण डायनामिक आहे आणि युजर कडनं व्हॅल्यूज येतात, राईट? बाय द वे वन मोर ऍप्लिकेशन ऑफ फंक्शनने, फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन अनॉनिमिटी मेंटेन करण्यासाठी, तुमचं लॉजिक हाईड करण्यासाठी फंक्शन वापरतात। म्हणजे तुमचं जे ऍप्लिकेशन आहे त्या ऍप्लिकेशन मध्ये काय लॉजिक लिहिलंय हे जर झाकून ठेवायचं असेल तर तुम्ही त्याला एक फंक्शन बनवा आणि ते फक्त फंक्शन युजरला पास करा आणि सांगा याच्यात व्हॅल्यू तू कॉल कर बाबा, तुला जे काय आउटपुट येईल ते येईल. You don't have to loop. This is nothing but an encapsulation. This is one more parameter for object oriented programming, right? Object oriented programming चा एक one of the parameter आहे encapsulation, inheritance, polymorphism and abstraction, right? clear? तो हाइड करने के लिए, एंड दिस इज हाउ इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहाँ पे होगा हाइड करने का? डज एनीवन नोज एपीआय? एपीआय काय असते काय नाही कधी ऐकले? एपीआय तुम्ही कॉल करता और एपीआय हिट करता, सो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन, जे मोठ्या कोड मध्ये एक फंक्शन लिहिलंय, तो फंक्शन तुम्हाला एक्सपोज केलाय, त्याच फंक्शनला प्रोग्रामेटिकली एपीआय म्हणतात। आई कैन नॉट शेयर द फंक्शन ना, असं नहीं म्हणू शकत, मतलब ये ऐसा नहीं लिख बोल सकते ना कि ये फंक्शन ले लो उसमें इंटर करो। सो द
लॉजिकल नेम और प्रोग्रामेटिकल नेम, और इंडस्ट्री में people call it a API. So that's why people provide APIs. So REST API and all those are that. अभी मान लीजिए आपको कुछ you have a code और वो एक API है, आपको सिर्फ मूड बताना है, you want funny joke or you want something, और वो API को हिट करना है, it will give you a joke. Can you create a program? और suppose let's take, वो थोड़ा एडवांस हो गया, आपको एक डिटेल पता है, मतलब यू हैव क्रिएटेड एप्लीकेशन बैंक के लिए, और बैंक में पीपल हैव फिल्ड देयर बैंकिंग एप्लीकेशन, मतलब बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो उसने फॉर्म भरा है, नाम भरा है, उसका एज भरा है, कितना अमाउंट है, उसके प्रूफ वगैरह है ना, और पैन कार्ड वगैरह देते हैं, आधार कार्ड, बट व्हाट इफ वो आधार कार्ड गलत है, और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन, और आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो गलत दिया है और आपका नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं बैंक वगैरह? दे सेंड यू ओटीपी, राइट? बट वो ओटीपी का लॉजिक कहाँ पे है? ओटीपी भेजने के लिए कुछ प्रोग्राम किया होगा ना, तो उस प्रोग्राम ओटीपी कहाँ है वो? दैट इज, और एसएमएस भेजने के लिए आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, मतलब जैसे मोबाइल वगैरह सिम कार्ड वगैरह लगेगा ना, और आपको कुछ नंबर से मैसेज आता है, तो यू नीड सिम कार्ड वगैरह, तो ये सब कुछ कहाँ पे होता है? सिम कार्ड, मतलब मान लीजिए आप बैंक में हो, एप्लीकेशन भरा है, आपने मोबाइल नंबर लिखा है, और आपने क्लिक करके आपको ओटीपी का मैसेज कैसे आता है? बैकएंड में वो प्रोसेस होता है। हाँ, सो ये क्या है कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आते हैं जो आपके बैंकिंग एप्लीकेशन को एक एपीआई देते हैं, और वो एपीआई में क्या रहता है, सिर्फ मोबाइल नंबर भेजो, हम यूजर को व्हाट्सएप और ओटीपी भेजेंगे, तो यू प्रोवाइड एज अ ओटीपी एज अ सर्विस, दिस इज व्हाट दे डू इट। मतलब उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, सिम कार्ड, टॉवर, आपको मोबाइल भेजना है, एसएमएस चार्जेस, सब कुछ, और उसका एक कोड बना है, और वो कोड में उन्होंने एक फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन में इनपुट क्या लेता है फंक्शन? सिर्फ मोबाइल नंबर, और वो फंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपीआई, एपीआई बैंक को बेचते हैं फिर, और बैंक जितने एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा और ओटीपी जनरेट करेगा, उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने हैं फिर, मतलब वो थर्ड पार्टी जो है ओटीपी जनरेट करता है, वो बैंक को एज चार्जेस करता है, भाई आप लोगों ने 10 बार हमारा ओटीपी सर्विस यूज किया है, तो उसका 10 रुपए होगा, जो भी उनके चार्जेस, even in right this times finance budget they told that UPI is free for us but government spend more than 2000 crores for this transaction, क्योंकि एपीआई यूपीआई आल्सो नथिंग बट प्रोवाइड्स सम एपीआई वगैरह देता है उसका, सो उसके ऊपर वेरिफिकेशन होता है, क्लियर? सो दिस इज इन रियल वर्ल्ड, बहुत सारे आपके भी कंपनी है जहां पे आप काम करोगे, दे विल प्रोवाइड एपीआई, एपीआई एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, यू कैन गो इट ऑन एनी वेबसाइट, इवन चैट जीपीटी प्रोवाइड्स एपीआई और जीपीटी एपीआई कॉस्ट, मतलब क्या करता है एपीआई, वेबसाइट खोल के लॉग करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, एक एप्लीकेशन मेरा बनाऊंगा जिस पे मैसेज कुछ जो यहाँ पे लिखता हूँ वो मेरे एप्लीकेशन में लोग लिखेंगे, और वो डेटा में थ्रू एपीआई चैट जीपीटी को भेजूंगा, और व्हाट एवर आई विल गेट, दिस इज, अभी फिर आप टाइप करोगे तो वो लॉगिन डिटेल्स चले जाएंगे, सो दीज आर नथिंग बट, ओके ये थोड़ा प्रोग्रामेटिकली है, यहाँ से यू पास थ्रू एपीआई की वगैरह वो भेजते हो, है ना? यहाँ पे टोकन पर एग्जीक्यूशन 10, उनके अलग अलग पैरामीटर्स है, कितने टोकन जाते हैं, क्या जाते हैं, है ना? शीट और एक्सेल, एक्सेल के लिए यूज जीपीटी फॉर वर्क, एक्सेल में भी यू एपीआई यूज कर सकते हो, $0.08 वगैरह, है ना? सो दिस इज नथिंग बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जहाँ पे फंक्शन यूज किया है टू अचीव, मतलब जो भी उनका कोड है वो, है ना? So there are a lot of companies or a lot of developers which create APIs और वो API सेल करता है. So one of such, मतलब माझा मित्र आता सध्या एक डेव्हलप केलं त्यांनी, which let me check,
बँकेचं जे आधार कार्ड आपण अपलोड करतो ना व्हिडिओ केवायसी मध्ये वगैरे, तर ते आधार कार्डचं डेटा एक्स्ट्रॅक्ट करते टेक्स्ट फॉर्म मध्ये, फ्रॉम फोटो मधून टेक्स्ट एक्स्ट्रॅक्ट करते अँड इट सेंड इट टू व्हेरिफिकेशन. कारण आधार नंबर पाहिजे ना, फक्त फोटो काढल्यावरती तुमचा आधार नंबर त्यातनं निघतो फोटो मधून, आणि तो आधार नंबर मग व्हेरिफिकेशनला पाठवतो. कारण तुम्ही जे अपलोड करता, इफ यू टाइप मैन्युअली, तुमच्याकडून चुका हो शकतात, राइट, आप कुछ गलत भी टाइप कर सकते हो. सो वो क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ फोटो निकालो, खत्म. बाकी वो फोटो से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, जो भी है वो डिटेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, और वो डेटा डायरेक्टली वेरीफाई करेंगे विथ जो भी अथॉरिटी है. And then काय जो आपण एक फोटो अपलोड केला होता, डाउनलोड केला होता, तुम्ही त्याचं बोलले त्याच्या मागे नंबर, फोटो नंबर मध्ये, फोटो मध्ये जे टेक्स्ट लिहिलंय, इफ आय टेक अ फोटो ऑफ दिस, गुगल ऑल्सो वर्क्स इन दॅट केस ओनली ना. आता बघा, हॅव यू युज्ड अ गुगल लेन्स? आता मी तर फोटो मधून जे टेक्स्ट आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो दॅट इज कॉल्ड ओसीआर, आणि ते ओसीआरचं त्यांनी एपीआय बनवलंय. ओके, इमेजचं रिप्रेझेंटेशन वेगळं, एपीआय म्हणजे मग थोडक्यात एक कोड लिहून ठेवलाय, कोड लिहून ठेवला आणि फंक्शन एक्सपोज केलंय, बस. ते आपण जेव्हा युज करतो ते कॉल होतं, राईट. आणि ते किती वेळा कॉल केलं त्याचा काउंट ठेवतात आणि तुम्हाला ते चार्ज करतात. क्लियर? लेट अस, ओके, आय नो थोड़ा अभी we spent too much on this, but I wanted you to understand कि exactly होता क्या है, where the real world में ये function use किया जाता है. जो भी आप कोड बनाओगे, make sure कि you know where it is used or how it is used, है ना? Okay, चलो. So yesterday I saw some for loop, जिथं आपण direct without writing anything we used a code, right? So there is one more, जैसे हमने अभी कंडीशन बेस पे we checked और एग्जीक्यूट किया. अभी कल जो हमने सीखा था लूप्स, जहाँ पे रिपीटेशन होगा कोड का, वो रिपीटेशन, एंड आज जो सीखे, जो हमने आज पढ़ा कंडीशन, विल कंबाइन बोथ एंड विल यूज इट इन अ while loop. So quickly focus here. How to write a while loop? Loop is nothing but I need to repeat something. If I want to repeat something, I will use loops. जैसे for loop हो गया, while loop हो गया. Okay? So the while loop क्या करता है? Condition के ऊपर it will determine how many times I have to run. Suppose I is equal to 1. I is nothing but a counter. This is called counter. And n is nothing but मेरा number है जो input है. Okay? N is a number. Let's make it number. And I is nothing but a counter. Okay? तो input में क्या दिया है मैंने? I have mentioned it a 5. And counter start होता है 1 से. Okay? So let us see. While I, मतलब जो भी counter मेरा है, less than or equal to 5, मतलब एक 5 से छोटा है और इक्वल टू है, इसका आंसर क्या आएगा? This is let me type 1 is less than or equal to 5. इसका आंसर क्या होगा? This is comparison operator, so that's why it is called true, right? True होगा तो हमारा लॉजिक, मतलब जो सिंटैक्स था, while is a कीवर्ड और यहाँ पे कोलन है और यहाँ पे इंडेंटेशन है, मीन्स my cursor or my code will come into a while block और ये while block रन होगा, है ना? This is called a block. अभी ये ट्रू है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, जो भी ट्रू आएगा उसके बाद ये रन होगा. तो रन होने के बाद यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अभी बताइए इस लाइन में. प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट आई. प्रिंट आई मतलब 1, है ना? इधर 1 प्रिंट होगा. फिर उसके नीचे जाएगा, इसके नीचे क्या आएगा यहाँ पे बताइए? i is equal to i plus 1. अभी बताइए क्या है i का वैल्यू, बताइए पहले तो. i का वैल्यू यहाँ पे कितना है? i का वैल्यू, i का वैल्यू है यहाँ पे 1.
फिर प्लस 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2। और ये वैल्यू 2 कहाँ पे जाएगा? इधर i में जाएगा। ओके, फिर i इज इक्वल टू 2। अभी मुझे बताइए, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, बाय द वे व्हाट इज दिस? ये क्या है? पहले विल स्टार्ट। इज इक्वल टू मतलब क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके बारे में एक स्टेटमेंट बोला था, क्या है वो? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। अभी प्लॉट कीजिए यहाँ पे राइट टू लेफ्ट। दिस इज राइट टू लेफ्ट। अभी तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है? पहले i का वैल्यू 1 था, फिर वो i का वैल्यू ओवरराइट होके 2 हो गया। क्यों 2 हो गया? क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम राइट। राइट से वो कैलकुलेट हो गया, फिर असाइन हो गया। तो इसलिए आई कैन यूज अ सेम वेरिएबल। नहीं तो आप आई में कंफ्यूज हो जाएगा, सर यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इसका 2 क्यों हो गया? राइट? सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर व्हिच वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसीलिए आई का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पे, है ना? क्लियर सबको? ऑनलाइन क्लियर? क्लियर? राहुल, यस, नो? दैट्स व्हाई वर इथे हे बघा, इथे 1 आपण केलंय ना. I is equal to 1 we already declared. I plus 1 हे माझं लॉजिक आहे. दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू डू. म्हणजे मला इन्क्रीज करायचा आहे तो काउंटर, म्हणून इथे 1 होता, त्याला प्लस करून मी 1 ऍड केला. हे ऍड केलं, त्यामुळे याचं 2 आन्सर, याचा आन्सर आलं 2. त्यामुळे I मध्ये 2 झाला आता. राइट? अभी I में क्या है? 2 है. बट मेरा लूप के फॉल्स जब तक नहीं होता तब तक मेरा लूप चलना चाहिए ना, क्योंकि हमने पहले देखा था ट्रू होने से इट विल कम डाउन. नेक्स्ट अभी देखिए, अभी ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे चेक कीजिए. अभी बताइए आई में क्या था मेरा? नीचे क्या है आई में? 2. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2. इज 2 लेस देन और इक्वल टू 5? इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, राइट? तो ट्रू आया है तो इट विल कम डाउन अगेन, ये नीचे के 2 लाइन. राइट? अभी नीचे आई में क्या है? अभी ऊपर देखिए आई में क्या है? यहाँ पे 2 है, राइट? तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 2. फिर ये नीचे आएगा. अभी आई में क्या है? 2 था, राइट? 2 प्लस 1 3. तो आई में क्या आएगा? 3 आएगा यहाँ पे. तो एक बार 3 हो गया, वापस ऊपर जाना है उसको, क्योंकि जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक वो बाहर नहीं आता, राइट? क्योंकि एल्स ब्लॉक है क्या यहाँ पे? नहीं है. सो ही हैज टू मेक इट फॉल्स, नहीं तो वो ठीक है. अभी बताइए मुझे, यहाँ पे क्या होगा? इट विल कंपेयर 3. इज 3 लेस देन 4? ट्रू है, राइट? इसका आंसर क्या है? ट्रू. तो ये ब्लॉक नीचे के रन हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे 3 आएगा, एंड देन उसके नीचे वापस वो 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, वापस चेक करेगा, कंडीशन 4 आएगा, नीचे आएगा 4. लेट्स टेक इट 5. अभी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे i इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? 5. आता मला सांगा, इज 5 अभी यहाँ पे ऊपर आ गया, 5 लेस देन और इक्वल टू 5? ट्रू, राइट? तो नीचे आएगा तो i क्या करेगा? 5 प्रिंट करेगा. नेक्स्ट कंडीशन इज i इज इक्वल टू, अभी बताइए यहाँ पे क्या होगा? i इज इक्वल टू i प्लस 1 है, मतलब 6 हो जाएगा. अगेन इट विल गो ऊपर जाएगा. अभी कंडीशन चेक कीजिए, इस पे क्या आएगा? यहाँ पे इज 6 लेस देन और इक्वल टू 5? फॉल्स, राइट? तो ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने से क्या होता है? मेरा लूप ब्रेक होता है, मतलब ये नीचे नहीं, वो प्रिंट नहीं करता, तो ये प्रोग्राम खत्म हो गया. सो दिस इज व्हाट इट प्रिंट्स, 1 2 3 4 5, है ना? क्लियर सबको? सो हाउ वी कंबाइंड? वी स्टार्टेड विथ फॉर. कल हमने देखा था रिपीटेशन सिर्फ.
आज देखा हमने कंडीशन बेस्ड कुछ कैलकुलेशन करना है तो, और कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग सीखा. Then we combined both loop and conditions in a while. Okay, clear सबको? Will be you able to print something with the while? Yes. While loop print कीजिए अभी. Now important question is मैं while कब use करूँ और for कब use करूँ? For iterative time, दोनों भी iterative है. But Yes. suppose Basic. we have to run a block of code again and again till the specific condition as long as true. Then use while. So whenever you know the condition, मतलब आपको condition पता है कि कब मुझे loop end करना है, then you have to use a while. आपको condition ही पता नहीं, सिर्फ repetition करना है code का, then you need a for loop. So the how you can answer is when I know the terminating condition. This is called terminating condition क्योंकि वो check करते हैं ना true and false है. So whenever I know the terminating condition, I can use while loop. When I don't know the terminating condition, I should use for loop. Okay, clear? So today I want you to do one thing. एक तो homework ऊपर वाला कोड लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला. नेक्स्ट while loop का एप्लीकेशन करके you print the numbers, print odd numbers, print even numbers और print numbers 1 to 100. Clear? Okay, now quickly मुझे बताइए what happens if I don't increase this one. चलो quickly इधर देखिए सब लोग, offline online. If I delete this line, ये क्या हो जाएगा अभी मुझे बताइए. Let's start with the beginning से start करते हैं. अभी बताइए I is equal to क्या है यहाँ पे? 1. Okay, is 1 less than or equal to 5? Yes. इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू. फिर वो क्या आएगा? नीचे आएगा प्रिंट आई करेगा. आई में क्या है वैल्यू? 1. तो 1 प्रिंट करेगा. तो इसके बाद वापस ऊपर जाएगा, राइट? और फिर अभी स्टार्ट बोलिए यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा? 1 इज ग्रेटर देन ट्रू. सो इट विल गो इनटू अ इनफाइनाइट लूप. बाय द वे, डोंट try this in your laptop. This is nothing but a virus. व्हायरस असंच क्रिएट करतात. ओके, हे जर रन केलं तुम्ही तुमचा कम्प्युटर हँग होतो. दॅट्स इट. आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ता है आपका कंप्यूटर. ओके, टू स्टॉप दिस आपको फास्ट बिफोर एक तो कर्नल स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो कंट्रोल डी इज द ऑप्शन और कंट्रोल सी इज द. ओके, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने फॉर योर इमरजेंसी. ये देखिए, डोंट स्किप द लास्ट लाइन और एल्स इट विल बी इनफाइनाइट लूप. कंट्रोल सी इज टू स्टॉप द इनफाइनाइट लूप. वो भी इफ इट टेक्स, मतलब इफ योर प्रोसेसर इज इनफ, इट विल नॉट वर्क इन अदर एप्लीकेशन. और डिपेंड्स आपका कितना प्रोसेसर हैंडल करता है मल्टी थ्रेडिंग. एक थ्रेड सीपीयू इज मल्टी थ्रेडेड. बाय द वे, आई डोंट नो, आप लोगों को पता है कुछ सीपीयू मल्टीपल टास्क करता है एक टाइम पे. सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे हैं, बैकग्राउंड पे वीडियो चल रहा है, सॉन्ग्स चल रहे हैं, ऊपर पाइथन प्रोग्रामिंग चल रहा है, नीचे कुछ डाउनलोडिंग शुरू है. सो इट क्रिएट्स मल्टीपल थ्रेड्स. दिस इज कॉल्ड थ्रेड्स. So if your computer supports multi-threading, so it can trigger that operation. But if जो पुराने लैपटॉप है वो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करते, so don't try. Or else try once, nothing will happen. काय होणार? हँग होणार है, शट डाउन कर दीजिए, है ना. सेव योर वर्क, दैट्स इट. बिफोर दैट क्लियर सबको? दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मे बी यू शुड ट्राई. तो इसलिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा है हमने. ओके, चलो. आई नो थोड़ा लेट हो गया है, इट्स ऑलरेडी डिलेड बाय 10 मिनिट्स. सो क्लियर सगळ्यांना? होमवर्क वगैरे क्लियर? रियल वर्ल्ड ऍप्लिकेशन क्लियर? कुठे वापरतात, काय वापरतात, फंक्शन कुठे वापरतात, व्हाईल लूप कुठे वापरतात. बाय द वे, दिस इज हाऊ द व्हायरसेस आर क्रिएटेड. ते तुमच्या प्रोसेसला इनफायनाइट लूप मध्ये टाकून देतात, मग बाकी काहीच नाही वर्क होत. ठीक है. सो राहुल, थँक्स अ लॉट. थँक यू फॉर युअर टाइम.
येस. चलो